Assalamu alaikum students. बच्चों, we have done the different questions from the past paper of this coordinate geometry. In the last class, the working is you have to do question number 27, 33, 37, 38, and these all are the diagrammatical questions. ये तमाम diagrammatical questions थे जिस पर हम लोगों ने working की है. And hopefully you have done all the questions. If anyone has any confusion in these 4 questions, then you may ask here. Okay, receive the message. Question number 38, last part. Question number 38, last part. There is a problem in question number 38, last part. Solve the equation. A very simple question. Solve the equation. The question is very simple, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने कभी इस टाइप का सॉल्व किया नहीं, या किया तो भूल गए. दैट इज द रीजन कि ये कुछ और स्टूडेंट्स ने भी मेरे से पूछा था. सो हियर इज द इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस. याद रखो बच्चों, जब भी इक्वेशन इस टाइप की हो, पावर 4th रूट की जब भी इक्वेशन आ जाए, हाउ कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन. इसमें हमने लिखना है सबसे पहले लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी, मैं यहां पर टी लिख रहा हूं. तो देयरफॉर आवर इक्वेशन इज 2t square plus 3t minus 2 equals to 0. Now by the help of your calculator, find out the value of t. For example, let's say t is 1. Let's say t is minus 3. Now, but what is t? T is basically x square. X square equals to 1. Therefore, the value of x is plus minus 1. And here x square equals to minus 3. And now it is not possible. We have to reject this as there is a negative sign under the root after this step. Laiba, hopefully you are clear. Now, after that, the questions of coordinate geometry. Total questions of coordinate geometry are 38 questions. Now, my plan is, अब आप लोगों ने ये जो 38 questions हैं, you guys have to upload these 38 questions by Thursday midnight. By या फ्राइडे को आप क्लास टाइमिंग तक अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, फ्राइडे क्लास टाइमिंग तक आप लोग अपलोड कर सकते हैं. काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने पास्ट पेपर के सॉल्व कर लिए हैं. कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो 2 days यू हैव, आप लोगों ने सबमिट करने हैं क्वेश्चंस. बट यू डोंट हैव टू डू द क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड अदर थिंग्स, राइट. फ्राइडे तक जब आप लोग ये सबमिट कर देंगे, तो ऑन फ्राइडे I will take your test of coordinate geometry. I will take your test of coordinate geometry on Friday. Yes, beta, coming Friday. काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं चांदनी. Now, so you have to submit the work by the next class. Wednesday है आज, कल का दिन है, आज का भी आधा दिन है आप लोगों के पास. होपफुली हो जाएंगे क्वेश्चंस, कोई इतना डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर. So I will take your test on Friday. Be prepared about your test. Google Classroom में
फोल्डर बना दूंगा मैं, उसमें आप लोगों ने ये चीजें अपलोड करना होगी ना। अब हमें कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? आफ्टर द टॉपिक ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, now I would like to start the next topic. What is the next topic in our book? Next topic in our book is circular measures. Next topic in our book is circular measures. But I am not starting the topic of circular measures because before the circular measures, we must have some knowledge of trigonometry. Before circular measures, we must have a knowledge of trigonometry. So today I am starting the topic of trigonometry. After the trigonometry, inshallah, we'll move towards circular measures. These two topics, trigonometry and circular measures, काफी एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स हैं. एग्जाम में कई बार इनके पार्ट्स एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं. तो first we are doing trigonometry. After that, inshallah, we'll start circular measures. Now, okay. So the topic of in the topic of trigonometry we have different subtopics. Number one, curve sketching. Number two, equation solving. Number three, identities. These are the three subtopics which we have to cover in the topic of trigonometry. So today we are starting the topic of curve sketching. What we have to do in this curve sketching, the first curve sketching. Now, first we are sketching the curve of y equals to sin x. We are sketching the curve of y equals to sin x. अब आप देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए कि यार आपने कर्व स्केच करना है, ध्यान में रखिएगा, इसको कंपेयर करवाते हैं हम एक जनरल इक्वेशन से. और वो जनरल इक्वेशन यहाँ पर क्या आ रही है जनाब? a sin bx plus c. This is called a general equation for sketching of any curve. Any curve means a function change हो सकता है, sin, cos, tan कुछ भी आ सकता है, but this one is the general equation. Cos की इक्वेशन होगी तो क्या हो जाएगा? a cos bx plus c. tan की इक्वेशन होगी तो क्या हो जाएगा? a tan bx plus c. Now,
जरा चेक करते हैं, हाउ कैन वी स्केच द कर्व ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का कर्व कैसे स्केच होगा, जरा देखते हैं जनाब। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? The value of A is 1. What is the value of B? The value of B is x कितनी बार है? 1x है. It is also 1. And what is the value of C? Plus कुछ भी नहीं लिखा हुआ. So it means what is the value of C? The value of C is 0. ये values तो हमने लिख दी, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि ये values mention represent क्या कर रही हैं. So now, what is A means? It is called amplitude. चले मैं ऐसे लिखता हूँ. A is amplitude, B is cycles in 360 degrees, and C is main axis. C is main axis. A is amplitude, B is cycles in 360 degrees, C is main axis. ये तीन चीजें क्या है, अभी हम जब स्केच करेंगे तो हमें अंदाजा होगा. देखिएगा अभी आप जरा. I am sketching the first curve of y equals to sin x. Now, keep one thing in mind. ये जो x एक्सिस है, इस पे हमें क्या वैल्यूज लिखनी है? 0, 90, 180, 270 and 360. Always you have to write these values. क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ हो, क्वेश्चन कैसा भी हो, आपने इन वैल्यूज से नहीं हटना है. यू हैव टू राइट दीज वैल्यूज. हमेशा यही वैल्यूज आपने लिखना है ना. अब इसके बाद हमें साइन का कर्व स्केच करना है. बिफोर स्केचिंग ऑफ द साइन कर्व, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साइकिल ऑफ साइन. साइकिल ऑफ साइन. साइकिल ऑफ साइन क्या होता है जनाब? साइन कर्व हमेशा स्टार्ट होता है एक्सिस से. एक्सिस मैक्सिमम, एक्सिस मिनिमम, एक्सिस. ये कहलाता है साइन का साइकिल. अभी क्या क्या लिखा हुआ है जनाब? फर्स्ट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 360 डिग्री. ये आपको बताया गया कि 0 डिग्री पर साइन क्या होगा, 90 डिग्रीज पर साइन क्या होगा, 180 डिग्रीज पर साइन क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. अब आप आगे देखिए.
किस तरीके से स्टार्ट करते हैं हम कर्व को स्केच करना। बेटा सबसे पहले फोकस होता है सी पर, मेन एक्सिस पर सबसे पहले फोकस होता है। सबसे पहला फोकस मेन एक्सिस पर होता है। सबसे पहले ये देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है जनाब, c इक्वल्स टू 0। हम इसको पढ़ेंगे y इक्वल्स टू 0। क्या पढ़ेंगे हम इसको, y इक्वल्स टू 0। y equals to 0 is the equation of the main axis. So beta y equal to 0 is the equation of the main axis. It means this x axis is the main axis. क्योंकि y equal to 0 is the equation of x axis. ये डिसाइड हो गया। अगर यहाँ 1 होता तो हम पढ़ते y equals to 1, फिर इक्वेशन मेन एक्सिस कौन सा हो जाता, y equals to 1 वाला। y equals to 2 होता तो y equals to 2 का मेन एक्सिस एंड सो ऑन, आगे करेंगे हम इसको। बट इन आवर केस y equal to 0, मेन एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। आफ्टर दैट, आफ्टर द मेन एक्सिस, जो दूसरी चीज हमें देखनी है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है कि मेन एक्सिस से कितना ऊपर और कितना नीचे हमें मूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर मेन एक्सिस, एम्पलीट्यूड कितना है जनाब, 1 है। तो वी हैव टू गो 1 above 1 below, we have to go 1 above 1 below. After that साइकिल्स देखनी है हमें, लेकिन वो उस वक्त देखनी है अगर b की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और हो। अगर b की वैल्यू 1 आ जाए तो फिर हम इसको देखते ही नहीं है, हम इसको देखेंगे ही नहीं। तो अभी हमारे केस में b की वैल्यू 1 है, हम इसको कंसीडरेशन में नहीं लाएंगे। नाउ आई एम स्केचिंग द कर्व एट 0 एक्सिस, 0 पर एक्सिस, 90 is maximum, 180 is axis, 270 is minimum, 360 is axis। ये आपके this is called basic sine curve. This is called basic sine curve. जब बेसिक साइन कर्व हमने देख लिया तो अब साथ ही मैं स्केच करूंगा, साथ ही मैं स्केच करूंगा बेसिक कॉस कर्व। y इक्वल्स टू cos x, बेसिक कॉस कर्व स्केच करते हैं जरा। Again 90, 180, 270 and 360. Beta, all the things are same. What is A? A is 1. What is B? B is 1. What is C? C is 0. तो मेन एक्सिस फिर हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। मैं यहां लिख देता हूं A is 1, B is 1, C is 0. C is 0 means y equal to 0 is our main axis. इसके बाद एम्पलीट्यूड को देखा जाता है, वी हैव टू गो 1 above 1 below. Now the problem is, how can we sketch? For sketching we must have the knowledge of cycle of cos. Cos का साइकिल मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम
एक्सेस, मिनिमम, एक्सेस, मैक्सिमम. नाउ अब आप देखिए एट जीरो कॉज इज मैक्सिमम, एक्सेस, minimum, excess, maximum. This one is the curve of cost. This one is the curve of cost. And after that, I am sketching the basic curve of tan x. The basic curve of tan x. So, अब आप देखिए जरा, how can we sketch the basic curve of tan? So now, again, 90, 180, 270, and 360. What is the cycle of tan? Cycle of tan is excess, infinite, excess, infinite, excess. Now here in this case, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 70 tan x. Now in this case, what is A? 70. What is B? 1. What is C? 0. अब आइए जरा, ए आपको दे दिया. सबसे पहले हमने मेन एक्सिस चेक किया. मेन एक्सिस तो y इक्वल टू 0, यही हो गया मेन एक्सिस. बट व्हाट अबाउट दिस? But what about amplitude, which is equal to 70? We have to go 70 above and 70 below. ऐसा ही जहन में आ रहा है. लेकिन याद रखिएगा, tan के केस में एम्पलीट्यूड को नहीं देखा जाता. tan की स्केचिंग में एम्पलीट्यूड को फोकस नहीं किया जाता. एम्पलीट्यूड 700 हो जाए, एम्पलीट्यूड 7000 हो जाए, एम्पलीट्यूड 1 ही हो, सब की स्केचिंग सेम होगी. tan कर्व की बात है ये. tan में एम्पलीट्यूड पर फोकस नहीं किया जाएगा. नाउ अब tan का फर्स्ट वैल्यू क्या है? tan की एक्सेस. सेकंड क्या है जनाब? इनफाइनाइट. एक्सेस, infinite, excess. Now, how can we sketch the curve of tan? Beta, tan is a discontinuous curve. Sine और cos continuous curve बने, दरम्यान में कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ कर्व. लेकिन tan is a discontinuous curve, ये दरम्यान में ब्रेक होगा. कैसे? अब आप देखिएगा. tan कर्व को मैं स्केच कर रहा हूं. एक्सेस, इनफाइनाइट, एक्सेस, इनफाइनाइट, एक्सेस, इनफाइनाइट, एक्सेस, इनफाइनाइट. tan कर्व कहां कहां ब्रेक हुआ?
90 पर ब्रेक हुआ, 270 पर ब्रेक हुआ. So this one is the basic shape of tan curve. ये तीनों बेसिक शेप्स जो हैं, ये तीनों बेसिक शेप्स जो हैं ये हमें नजर आ रही हैं. तीनों बेसिक शेप्स हमें नजर आ रही हैं. इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए. अब ये जो तीनों बेसिक शेप्स हमें नजर आ रही हैं जनाब, अब इन्हीं को ही हम मजीद, इन्हीं बेसिक शेप्स के साथ ही हम मजीद चीजें सीखेंगे कि अगर ए चेंज हो जाए, अगर बी चेंज हो जाए, अगर सी चेंज हो जाए तो ये बेसिक शेप्स पर क्या चेंजेस आते हैं, ये हम सीखेंगे अब मजीद आगे. सो नाउ स्क्रीनशॉट होपफुली आप लोगों ने इसका ले लिया होगा. नाउ the fourth question, the fourth example. For example, क्वेश्चन आपको दिया गया y equals to 2 sin x plus 1. चीजें चेंज हो गई, चीजें चेंज हो गई जनाब. व्हाट इज a? 2. व्हाट इज b? b 1 ही रहा. व्हाट इज c? 0. नाउ हाउ कैन वी स्केच दिस कर्व? फिर वही बेसिक शेप सेम रहेगा. बेसिक शेप कर्व का सेम रहेगा. आइए ना, here it is 90, 180, yes c is 1. Hazib, yes c is 1. मरियम C1 है, बिल्कुल सही कह रही हैं. सॉरी, वो तो मैंने गलत लिख दिया ना यार. वेट, यस C is 1. C is 1. Now 90, 180, 270 and 360. How can we sketch? How can we sketch this curve? अब देखिए आप, अब हमें मेन एक्सिस जो बनाना है वो कहां बनाना है? y इक्वल टू 1 पर. मेन एक्सिस बनाया y इक्वल टू 1. मेन एक्सिस के बाद हमें देखना है एम्पलीट्यूड. सो वी हैव टू गो 2 यूनिट above and 2 unit below from the main axis. 1 plus 2, 3. 1 minus 2, minus 1. नाउ ये तमाम चीजें सेट हो गई यहां पर. अब साइन का साइकिल देखिए. एक्सेस, मैक्सिमम, एक्सेस, मिनिमम, एक्सेस. So the curve of sine is like, क्या हुआ जनाब? शेप वही रहा लेकिन 1 यूनिट ऊपर ट्रांसफॉर्म हो गया. 1 यूनिट ऊपर ट्रांसफॉर्म हो गया बिकॉज C is 1 here. After that, y equals to 2 minus 3 cos x. जरा इसका एनालिसिस करते हैं. व्हाट इज ए? ए होता है मल्टीपल फंक्शन का -3. व्हाट इज बी? 1. व्हाट इज सी? सी होता है कांस्टेंट. इन आवर क्वेश्चन कांस्टेंट पहले लिख दिया गया. C is 2. Now how can we
sketch this. How can we sketch this? Here, now, here it is again, 90, 180, 270 and 360. What is the main axis? Main axis is 2. ये हमने बना दिया main axis 2. ये हमने बना दिया main axis 2. How many units above? 3 above. 2 plus 3, 5. 2 minus 3, -1. Now, cos कहां से स्टार्ट होता है जनाब? cos का साइकिल मैक्सिमम से. लेकिन अब एक चीज सुनिए, ये जो माइनस नेगेटिव का साइन नजर आ रहा है हमें, ये जो हमें नेगेटिव में ए नजर आ रहा है, ये क्या करेगा? कर्व को अपसाइड डाउन कर देगा, कर्व को रिवर्ट कर देगा, मैक्सिमम को मिनिमम पे ले आएगा और मिनिमम को मैक्सिमम पे ले आएगा. कॉस का कर्व मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, नहीं करेंगे अब हम मिनिमम से स्टार्ट करेंगे. रीजन क्या है? क्योंकि एम्पलीट्यूड नेगेटिव में है. अब स्टार्ट का पॉइंट सिर्फ हमें पकड़ना होता है, उसके बाद तो पूरा साइकिल चलना शुरू खुद ही हो जाता है. मिनिमम एक्सेस, मैक्सिमम एक्सेस, मिनिमम. पहला पॉइंट फोकस करना पड़ता है, साइकिल उसके बाद खुद ही बन जाएगा. बाकी कोई चीज हमें याद नहीं करना होती इसमें. ये बना कॉस का कर्व और कॉस का उल्टा कर्व बना. कॉस का उल्टा कर्व बना. और उल्टा कर्व क्यों बना जनाब? क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारा नेगेटिव में था. एम्पलीट्यूड नेगेटिव में था, इस वजह से कॉस का उल्टा कर्व बनकर आ गया. नाउ अब आप देखिए, आफ्टर दिस अब वर्किंग करते हैं जरा हम एक डिफरेंट कर्व ऑफ tan पर. सिक्स्थ वन, y इक्वल्स टू tan x माइनस 100. कोई मसला नहीं है जरा. व्हाट इज a? 1. व्हाट इज b? 1. व्हाट इज c? -100. कोई इशू नहीं है, बनाते हैं tan का. $90, $180, $270, $360. Here it is -100. स्केचिंग है जब भी तो आसानी है, हमें कुछ भी हम बना सकते हैं. फर्स्ट वैल्यू ऑफ tan is excess, then infinite, फिर excess, फिर infinite, फिर excess. कैसे बनकर आएगा जनाब?
एक्सेस इनफाइनाइट, एक्सेस इनफाइनाइट, एक्सेस इनफाइनाइट, एक्सेस इनफाइनाइट। जरूरी थोड़ी है कि हम इस एक्सेस को टकराएंगे, अपने मेन एक्सेस पर काम होता है हमारा। मेन एक्सेस पर हमारा काम होता है, हम मेन एक्सेस पर ही काम करते हैं। अब एक काम कीजिए आप लोग, ये जो डिफरेंट कर्व्स स्केच किए हैं 4, 5 एंड 6, जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आफ्टर दैट 15 मिनट्स वी हैव, 15 मिनट्स हैं अब हमारे पास। तो अब in these 15 minutes you have to sketch y equals to 3 sine x plus 5, y equals to cos x minus 2, y equals to tan x minus 1, y equals to 2 minus 2 sin x, y equals to 3 minus 2 cos x। These question start कीजिए वर्किंग इन क्वेश्चंस पर, जो प्रॉब्लम हो फिर यहीं पर डिस्कस कीजिए आप लोग। चले बच्चों, स्टार्ट वर्किंग। यस चांदनी बेटा, समझ में आ रही हैं चीजें? दैट्स ग्रेट। हरीम बेटा, चीजें क्लियर हैं? स्केच हो रहे हैं?
That's good, Hareem. Hazib, are you clear? Hazib, are you clear? Mashallah. Iman, you beta. Iman Fatma, are you clear? Laiba, you beta clear? Yes, sir. Mashallah, mashallah. Laiba, you beta clear? That's great. Mariam Arif, are you clear? Mashallah. That's excellent. मरियम, बेसिक में मिनिमम हमेशा -1 रहेगा, लेकिन अगर वो चेंज हो जाती हैं चीज़ें, लाइक इन द केस, अभी यहाँ पर हमने कोई केस ऐसा नहीं किया कि जिसमें -1 के अलावा हो। चीज़ें अगर चेंज हो जाएंगी तो अकॉर्डिंग टू दैट फिर वो हमें चेंज करना होगा। लाइक आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें मेन एक्सेस 5 है। 5 से 3 अब जाएंगे तो 5 6 7 8, 5 से 3 नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो इसमें मिनिमम 2 होगा, -1 नहीं होगा इसमें। मरियम, होपफुली दिस इज क्लियर फॉर यू। मिनिमम मैक्सिमम डिपेंड करता है मेन एक्सेस और एम्पलीट्यूड के साथ। मेन एक्सेस 5 है, 5 से कितना ऊपर जाना है हमें, 3 ऊपर, तो कहाँ पहुंचे 8। 5 से कितना नीचे हमें आना है, 3 नीचे, कहाँ पहुंचे 2, तो बेटा 2 से लेकर 8 के दरमियान ये कर्व बनेगा, नेगेटिव में कर्व ये नहीं जाएगा। मरियम, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर।
डेस्परेट, हाजिब, हरीम। बच्चों अब ये है कि सिर्फ आज तो यही आप लोगों ने वर्किंग करना है एंड आई एम मेकिंग गूगल क्लासरूम फोल्डर। वहाँ पर आप लोगों ने अपलोड कर देनी है क्या चीज़, पास्ट पेपर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय फ्राइडे बिफोर आवर क्लास। उसमें टाइम मेंशन होगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूरा मैसेज सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह सी यू ऑन फ्राइडे। अल्लाह हाफिज।